सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है ये ट्यूटोरियल। एंड टुडे हमारे पास दो टॉपिक है, उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बेसिकली ये क्लास 10 से लिया गया है और ये थर्ड चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। Two stories about flying. His first flight, Liam O. Flighty, and second one, the black aeroplane, Frederick Forsyth. Let's see first his first flight. The young seagull was alone his laze. Laze means a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. So एक जो young seagull था वो alone था अपनी लेज में. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. तो उसका जो दो भाई और एक सिस्टर था वो क्या हुए थे, वो already flown away हो गए थे वो एक दिन पहले. He had been afraid to fly with them. तो वो बहुत डर गया था फ्लाइट करने के लिए उनके साथ. Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो यहाँ पे बताया गया है कि somehow कुछ हद तक when he had taken a little run forward to brink of the ledge, जब लेज से थोड़ा दूर लिया था उसने, and attempted to flap his wings, he became afraid. तो जब उसने attempt किया अपनी जो wings था उसको flap करने के लिए, तो उस टाइम वो क्या हुआ, afraid हो गया, मतलब डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. तो बहुत दूर था, miles दूर था. He felt certain that his wings would never support him. तो वो उसको फील हुआ कि जो इसका विंग्स था वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगा. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसने क्या किया कि जो बेंड किया अपनी हेड को एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, जो छोटा सा होल था वहां तक वो दौड़ते गया. एंड अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, तो जहां पे वो सोता था वहां तक वो दौड़ के गया. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, तो वो भी उसका जो सिस्टर थे और जो ब्रदर थे, whose wings were far shorter than his own, जो कि उसका जो अपना विंग्स था उससे भी छोटा था. ran to the brink, flapped their wings, तो अपनी जो विंग्स था उसको फ्लैप कर रहा था. and flew away, and उड़ गया. he failed to muster of courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वो फेल हो गया, मतलब he failed to muster of the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो उसके सामने जो दिख रहा था उसके लिए वो desperate हो गया, मतलब हतोत्साहित हो गया, निराश हो गया. His father and mother had come around. उसका मम्मी और पापा वहां पे आए थे. Calling to him shrilly, upbraiding मतलब scolding, मतलब उसको गाली दे रहे थे. Threatening to let him starve on his ledge unless he flee away. जब तक वो उड़ के नहीं जाएगा उसको नहीं खाने का, मतलब खाना नहीं दिया जाएगा उसको, ऐसे ही थ्रेटन कर रहे थे. थ्रेटन मतलब धमकी देना. But for the life of him he could not move. तो उसने मूव नहीं कर पाया. That was 24 hours ago. तो 24 घंटा हो गया था, 24 घंटा से पहले. Since then nobody had come near him. तो कोई भी उनके पास नहीं आया था. The day before, दिन से पहले, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. तो उसने देखा कि उसका जो भाई और बहन है उसके साथ पापा भी उड़ रहे थे. Perfecting them in the art of flight. तो उनको जो उड़ने का जो आर्ट होता है उसको परफेक्ट कर रहे थे. Teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. तो कैसे उसको स्कीम करे वेव्स में एंड कैसे डाइव करे मछली के लिए. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it. तो उसने भी देखा क्या कि जो पहला उसका हेरिंग था और उसको डेवोर भी था. उसको हेरिंग मतलब यहाँ पे ए सॉफ्ट फाइंड सी फिश, एक तरह का मछली होता है. स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक जगह जो रॉक था, पत्थर था, उसके वहां पे खड़ा था.
while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the wolf family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. तो उनका जो cowardice था मतलब डरपोक जो डरना होता है उसको भी वो टर्न कर रहा था. The sun was now ascending the sky. मतलब जो सन था वो ascend कर रहा था sky की तरफ. Blazing on his lace and dead faced the south. साउथ को वो साउथ की दिशा में वो था उसका फेस था. He felt the heat. उसने क्या किया जो हीट था उसको फील किया because he had not eaten since the previous nightfall. तो रात में जो हुआ था रात के बाद वो नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the place and standing on one leg with other leg hidden under his wing. He closed one eye then other. उसने एक आंख बंद किया उसके बाद another किया and pretended to be falling asleep और सोने का नाटक करता रहा अभिनय करता रहा. Still they took no notice of him. लेकिन उसको भी वो क्या किए उनको नोटिस नहीं किए. He saw his two brothers and sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. तो उसने देखा कि उसका जो दो भाई है और बहन है वो प्लेट्यू में पड़े थे और डोजिंग विद देयर हेड्स सॉन्ग इनटू देयर नेक्स. तो वो क्या कर रहे थे डोजिंग कर रहे थे मतलब जो शॉर्ट स्नैप होते हैं वो कर रहे थे. His father was preening the feathers on his white back. यहाँ पे preening का मतलब है making an effort to maintain feathers. मतलब है एक अटेम्प्ट करना अपनी जो feathers है उसको मेंटेन करने के लिए एक अटेम्प्ट या एफर्ट करना. Only his mother was looking at him. केवल उनका जो मम्मी था वो ही देख रहे थे. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scrubbed each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. Maddened मतलब यहाँ से पागल कर दिया. How he loved to tear food that way. वो कैसे कर रहा है उसको टीयर कर रहा है मतलब उसको चीर रहा है अपनी जो खाद्य होता है. Scraping his beak now and again to wet it. Wet मतलब to sharpen it. Ga 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 he cried begging her to bring him some food. तो वो ऐसा ही रोता रहा begging कर रहा मतलब मांग रहा है खाने कुछ लाने के लिए. Gao kola. She screamed back derisively. Derisively मतलब in a manner showing someone that he is stupid. मतलब एक मैनर होता है जैसे कि आपको पता चलेगा कि वो स्टूपिड है इडियट है. But he kept calling plaintively and after a minute or he uttered a joyful scream. तो उसने क्या किया जो एक स्क्रीम किया उस बहुत joyful था मतलब मजेदार था आनंदमय था. His mother had picked up a piece of fish. तो उसने उसका जो मम्मी था वो एक piece of fish मतलब एक मछली को उठाया and was flying across to him with it. He leaned out eagerly. तो उसने lean out eagerly किया. Tapping the rock with his feet. जो रॉक था उसको टैप कर रहा था अपने पैर से अपनी जो फीट था उससे. Trying to get nearer to her as she flew across. तो उसने क्या किया उसके पास जाने के प्रयास कर रहा था जैसे कि वो उड़ रहा था. But when she was just opposite to him, जब वो उसके विपरीत में था opposite में था, she halted. उसने रुक गया. Her wings motionless. जो उसका जो wings था वो motionless हो गया मतलब गतिशील नहीं था रुक गया. The piece of fish in her beak almost within reach of his feet. He waited a moment in surprise. तो वो कुछ समय के लिए वो सरप्राइज रुक गया. Wondering why. वो सोचता रहा क्यों. She did not come nearer. वो क्यों नहीं आया. And then maddened by hunger. और जो भूख से पागल हो गया. He dived at the fish. वो फिश की तरफ वो डाइव किया. With a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him. जो एक monstrous terror था उनको सीज कर लिया. And his heart stood still. उनका जो हार्ट था वो स्टिल हो गया. He could hear nothing. उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. But it can only lasted
but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसका जो फील कर रहा था कि जो टिप्स ऑफ द विंग्स था, जो विंग्स का जो टिप पार्ट था वो कटिंग हो रहा था एयर में. He was not falling headlong now. He was He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid, और वो मतलब afraid नहीं था. He just felt a bit dizzy. उसको dizzy feel हुआ. Dizzy मतलब an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. मतलब हिलना, अपनी balance को बैठना. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 gaul ga. His mother sobbed past him, her wings making a loud noise. जो उसका जो wings था वो loud noise create किया. He answered her with another scream. तो उसने आंसर किया और एक स्क्रीम के साथ. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Curveting मतलब leaping like a horse. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. तो वो completely भूल गया था कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता है. And commanded himself to dive and soar and curve and singing shrilly. He was near the sea now. वो sea के पास में था. Flying straight over it. वो उसके ऊपर fly कर रहा था. Facing straight out over the ocean. तो ocean के तरफ वो move करके वो straight वहाँ पे जा रहा था. He saw a vast green sea beneath him. तो उसने देखा कि एक बड़ा green sea था जो उनके नीचे था. With little breezes moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flowering ahead of him. जो green flower थे वहाँ पे वो land हो गए थे. उनका भाई और बहन और उनके parents. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. तो उनका जो legs था वो sank हो गया मतलब डूब गया. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो वो डर गया and वो अपनी जो wing था उससे वो attempt कर रहा था उठने के लिए. But he was tired and weak with hunger. वो tired हो गया था and weak हो गया था hunger के साथ. मगर उसको बहुत भूख लगा था इसके लिए वो बहुत ही tired हो गया था. And he could not rise और वो उठ नहीं सका. Exhausted by the strange exercise, और जो strange exercise था उससे वो exhaust हो गया था मतलब tired हो गया था, थकान महसूस कर रहा था. His feet sank into the green sea. उसका जो feet था वो green sea में डूब गया या डूब गया. And then his belly touched it. उसका जो belly था मतलब पेट था उसको touch किया. And he sank no further. He was floating on it. उसके ऊपर वो float कर रहा था मतलब तैर रहा था. Around him his family was screaming. और उसका जो फैमिली था वो भी स्क्रीम कर रहे थे. Praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. और वो अपना जो पहला फ्लाइट है वो कर. Now second part, the black aeroplane. The moon was coming up in the east. ईस्ट में क्या हो रहा था? मून आ रहा था. Behind me, मेरे पीछे आ रहा था. And stars were shining in the clear sky above me. मेरे ऊपर जो stars थे वो shining कर रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. एक भी cloud नहीं थे sky में मतलब आकाश में एक भी cloud नहीं थे. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो बहुत वही खुश थे. I was very happy मतलब बहुत मैं खुश था to be alone high up above the sleeping countryside. तो countryside में sleeping कर रहा था मैं बहुत खुश था. I was flying my old Dakota aeroplane. मैं क्या कर रहा था कि मेरा जो पुराना एरोप्लेन था Dakota था मैं वो उसको fly कर रहा था from over France
बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से मैं इंग्लैंड उसको फ्लाई कर रहा था, उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और जो मेरा हॉलीडे था मैं उसको ड्रीम कर रहा था, मतलब उसको सपने में देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं आगे देख रहा था कि मैं हमारी जो फैमिली है मैं उसके साथ रहूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी जो वॉच था, घड़ी था, उसको देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, वे 1:30 हुआ था मॉर्निंग के टाइम। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, तो उन्होंने सोचा कि मैं कॉल करना चाहिए मेरे को पेरिस कंट्रोल को। As I looked down past the nose of the aeroplane, जब मैंने नीचे देखा, the nose of the aeroplane, एरोप्लेन के नोज को देखा, I saw the lights of big city in front of me, मैंने देखा कि जो लाइट था वो बिग सिटी का था, तो वो मेरे सामने आ रहा था। I switched on the radio, मैंने रेडियो का ऑन किया and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? आप मेरे को सुन सकते हैं? I am on my way to England, over. तो मैं इंग्लैंड जाने वाला रास्ते में हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो वॉइस आया रेडियो से वो इमीडिएटली आंसर दिया। DSO088, आई कैन हियर यू, यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। आई चेक द मैप एंड विद द कंपास, तो मैंने कंपास और मैप को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तो मैंने क्या किया, स्विच किया, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो लास्ट फ्यूल टैंक था और जो सेकंड था उसको स्विच किए। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, तो मैंने क्या किया, जो डकोटा था एरोप्लेन था उसको 12 डिग्री को वेस्ट को वेस्ट वेस्ट साइड को मैंने इंग्लैंड की तरफ लिया। आई बी इन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम में आ जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और उन्होंने सोचा कि एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल, एवरीथिंग मतलब वो सब अच्छा चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, और ये एक इजी फ्लाइट था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब उन्होंने क्लाउड्स को देखा तो उन्होंने क्या देखा कि पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर उनके पीछे था। स्टॉर्म्स क्लाउड्स, they were huge, वो बहुत बड़ा था। They looked like black mountains standing in front of me across the sky, वो ऐसा देख रहा था जैसे कि ब्लैक माउंटेन खड़ा है मेरे सामने। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, मैं पेरिस जाना चाहता हूँ। I thought but I wanted to get home, मैंने सोचा लेकिन मेरे को घर जाना था। I wanted their breakfast, मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए था। I will take the risk, मैं रिस्क लूंगा। I thought, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा। And flew that old Dakota straight into the storm, और मैंने वो स्टॉर्म के अंदर से ही अपने जो डकोटा था उसको फ्लाइट कर लिया, मतलब उड़ा लिया। Inside the clouds everything was suddenly black, तो जो inside the clouds के अंदर everything was suddenly black, मतलब हर चीज ब्लैक में हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane, तो एरोप्लेन से बाहर को देखना इट वॉज इम्पॉसिबल, मतलब असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप हुआ एंड ट्विस्ट हो गया एयर में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर सकता माई आईज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो राउंड राउंड मतलब घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। इट वॉज डेड, वो नष्ट हो गया, मतलब वो काम नहीं किया। It would not work, वो काम नहीं किया। The other instrument were suddenly dead through I tried the radio, जो अदर इंस्ट्रूमेंट था वो भी डेड हो गया, मतलब खराब हो गया। मैंने रेडियो की भी ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी। देयर वाज नो आंसर, कोई आंसर नहीं दे रहा था। द रेडियो वाज डेड थ्रू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैंने स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया था, मतलब खो दिया था खुद को। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, उसके पास में आई वॉज सो अनदर एयरप्लेन, मैंने एक एरोप्लेन देखा जो कि मेरे पास ही था, नियर मी। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग में कोई लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और मैं देख सकता था
कि जो स्टॉर्म था वो नेक्स्ट टू मी चल रहा था, मतलब मेरे साइड में चल रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, वो मेरे सामने आ रहा था और मेरे तरफ आ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मेरे को बहुत खुशी हुआ कि एक अलग इंसान या अनदर पर्सन मेरे पास आ रहा है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो एक अपना एक हाथ लेकर उसने उसने वेव किया, मतलब इशारा किया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, तो उसने किया, उसने कहा कि फॉलो मी, मेरा पीछे करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उनको पता था कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ, मैं खो दिया हूँ खुद को। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरे को हेल्प करना चाहता है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने जो एरोप्लेन था वो नॉर्थ को टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने वो टर्न किया। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो मेरे लिए ये इजी हो जाएगा मैं उनका पीछा करूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ कि मैं उनके जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसके पीछे जाना हुआ, जैसे कि हम मेरे को फील हो रहा था कि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड हूँ, मतलब आज्ञाकारी छात्र। After half an hour के बाद the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds, तो clouds के सामने भी मेरे पास सामने ही था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more, तो there was only enough fuel, मतलब ही कुछ ही फ्यूल बाकी था कि 5 or 10 मिनट्स चल सकता है। और I was starting to feel frightened again, तो मेरे को फिर डर महसूस हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, तो वो नीचे जाने लगे तो मैंने भी उनका साथ दिया, मतलब उनके साथ ही फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो जब सडनली मैंने जो क्लाउड से बाहर आया और मैंने देखा कि जो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन था वो लाइट मेरे सामने था। इट वॉज ए रनवे, तो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं पूरा सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, तो मैंने टर्न किया अपनी फ्रेंड को देखने के लिए ब्लैक एरोप्लेन में। बट स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई जो था वो एम्प्टी हो गया था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी एनीवेयर, मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो मैं थैंक यू कहना चाहता था और मैंने उनको जाकर उनको एक लेडी को पूछा कि वो कौन थे एंड मैं कहाँ पे था। She looked at me very strangely and then laughed. उसने मेरे को strangely देखा और मेरे ऊपर हंस दिया। Another aeroplane up there in the storm. No other airplanes were flying tonight. और कोई भी एरोप्लेन आपके साथ फ्लाइट नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडर, मैं राडर से देख सकता हूँ कि आपका ही सिर्फ एरोप्लेन था। सो हु हेल्प यू टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, तो उन्होंने पूछा कि मेरे को कौन हेल्प किया विदाउट ए कंपास और रेडियो, विदाउट एनी मोर fuel in the my tanks, who was the pilot in a strange bag. If you have doubts in this chapter, you can write in the comment section. I will talk to you. Thank you very much.